آغا اقرار ہارون صاحب نے۔ آغا صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم ٹو پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ بڑی خبر ہے، سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں، کس طرح سے دیکھتے ہیں اس اہم ڈیولپمنٹ کو؟ درست ہے، آخرکار سپریم کورٹ نے اجازت دی، اناؤنسمنٹ کی کہ آپ 13 دسمبر کو سپریم کورٹ نے جو 7 ممبر تھا کہا کہ آپ اناؤنسمنٹ کر سکتے ہیں۔ اناؤنسمنٹ آپ کو پاکستان کوشش کریں گے، آپ کی آڈیو ہم نہیں سن پا رہے ہیں، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین، اہم خبر آپ کو دیں گے، سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں ایک سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں۔ سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام قانونی حقوق بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو آج سزائیں سنا دی ہیں۔ ملوث ملزمان کے خلاف ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ کچھ مقدمات قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھجوائے گئے، جہاں مناسب قانونی کارروائی کے بعد ان مقدمات کا ٹرائل ہوا۔ 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی آئینی بینچ نے زیر التوا مقدمات کے فیصلے سنانے کا حکم صادر کیا۔ وہ مقدمات جو سپریم کورٹ کے سابقہ حکم کی وجہ سے التوا کا شکار تھے۔ 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکائے گئے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ نفرت اور جھوٹ پر مبنی ایک پہلے سے چلائے گئے سیاسی بیانیے کی بنیاد پر مسلح افواج کی تنصیبات بشمول شہداء کی یادگاروں پر منظم حملے کیے گئے اور ان کی بے حرمتی کی گئی۔ سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ یہ پرتشدد واقعات پوری قوم کے لیے ایک شدید صدمہ ہے۔ 9 مئی کے واقعات واضح طور پر زور دیتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی دہشت گردی کے ذریعے اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس یوم سیاہ کے بعد تمام شواہد اور واقعات کی باریک بینی سے تفتیش کی گئی اور 9 مئی کے ملزمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ یہ سزائیں دی گئی ہیں 9 مئی کے ملزمان کو، اور یہ سزائیں تمام شواہد کی جانچ پڑتال اور مناسب قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد سنائی گئی ہیں۔ سزا پانے والے ملزمان کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تمام تر قانونی حقوق بھی فراہم کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، نجم علی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں۔ سر، بہت شکریہ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ بہت ہی اچھا پریسیڈنٹ سیٹ کیا گیا ہے ملٹری کورٹس کی جانب سے، آئندہ جو ہے اب انتشار کی سیاست یقینی طور پر اس کا تدارک کیا جا سکے گا، اس کے سدباب کے لیے بہت اچھا اقدام ہے۔ نجم صاحب، اہم ڈیولپمنٹ ہے سانحہ 9 مئی کے حوالے سے، کس طرح سے دیکھتے ہیں انتشار اور تضاد اور سیاسی مفادات کی اس آپسی جنگ میں نوجوانوں کو جھونکنے کی سیاست کے خاتمے کے حوالے سے؟ جی فوجی عدالت میں سزائیں سنائی گئی ہیں، اس کو بہت سارے لوگ اس سے پہلے متنازع بنانے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی طرف سے اجازت ملنے کے بعد اب سزائیں سنانے کا عمل شروع ہوا ہے۔ تو یہ بھی بات کرنے کی ضروری ہے کہ فوجی دہشت گردی کی عدالت اور اس کے بعد راولپنڈی سے بھی عدالت جو ہے سزائیں سنا ہے، تو اگر یہ سزائیں سنانے کا اور جس طرح ہم 9 مئی کو دیکھتے ہیں کہ اس کو 1.5 برس کا وقت گزر چکا ہوا ہے، اس دوران اگر ابھی تک سزائیں نہیں ہو رہی تھی تو اس میں بہت بڑی جو قانونی وجوہات تھی وہ اس میں پیش نظر تھی، اس وجہ سے سزائیں نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا نجم صاحب، آپ کی آواز میں تو کچھ ڈسٹورشن ہے، کائنڈلی تھوڑی سی پوزیشن اپنی تبدیل کیجیے گا، جگہ تبدیل کر کے بات کریں۔ جی، اب آپ کو آواز ہے؟ جی کنٹینیو پلیز۔ ہاں جی، جیسے کہ اس وقت ضرورت سمجھ کے عدالت کی سزا سنا چکی تھی، اب فوجی عدالتوں کی طرف سے بھی سزائیں آنا شروع ہو گئی ہیں، لیکن یہ معاملہ اس وقت تک انجام تک نہیں پہنچے گا جب تک اس کے ماسٹر مائنڈ اور اس کے منصوبہ کو سزائیں نہیں ہوتی۔ اس سلسلے میں جو اعلانات ہو رہے ہیں یا جو اس وقت تک جو کی آواز میں ڈسٹورشن ہے، دوبارہ سے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس اہم موضوع پر ایک مرتبہ پھر سے کوشش کریں گے کہ آپ کا نقطہ نظر جو ہے وہ لے سکیں۔ آپ کو آگاہ کریں گے کہ سانحہ 9 مئی میں ملوث مجرمان کو سزائیں سنا دی گئی ہیں۔ 9 مئی 2023 کو قوم نے سیاسی طور پر بھڑکانے کے لیے اشتعال انگیز تشدد اور جلاؤ گھیراؤ کے افسوسناک واقعات دیکھے۔ 9 مئی کے پرتشدد واقعات پاکستان کی تاریخ میں بلا شبہ سیاہ باب کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نفرت اور جھوٹ پر مبنی
पहले से ही चलाने वाले सियासी बयानिया की बुनियाद पर मुसल्लह अफवाज की तनसीबात बशमूल शुहदा की यादगारों पर मुनज़्ज़म हमले किए गए और उनकी बेहुरमती की गई, जिस पर हर मुहिब वतन पाकिस्तानी का दिल मगमूम हुआ, ज़ख्मों से चूर चूर हुआ। और बहुत सारे पाकिस्तानी उस वाक़े के बाद जो मुसलसल मुतालबा कर रहे थे कि ऐसे घिनौने वाक़यात में मुलव्वस जो अनासिर हैं उनको कानून के मुताबिक सज़ाएँ सुनाई जाएँ, ताकि मुस्तक़बिल में ऐसी पुरतशद्दुद और मफाद परस्ती पर मबनी सियासत का जो है वो ख़ात्मा किया जा सके। 9 मई के वाक़यात वाज़ेह तौर पर जोर देते हैं कि किसी को भी सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए अपनी मर्ज़ी दूसरों पर मुसल्लत करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसी हवाले से मज़ीद बात करेंगे। हमारे तरफ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार डॉक्टर सज्जाद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। डॉक्टर साहब, कहिएगा कि सानिया 9 मई के हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है, इसमें मुलव्वस 25 मुजरिमों को जो वो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। मुस्तक़बिल में इस पुरतशद्दुद और मफाद परस्ती पर मबनी जलाओ घेराव वाली सियासत के तदारुक के हवाले से ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट है? मनाजिर, बहुत शुक्रिया। इसके दो पहलू हैं। एक अफसोसनाक पहलू ये है कि वो नौजवान जिन्होंने पाकिस्तान के मुस्तकबिल को संवारना था और इकबाल के वो शाहीन जिन्होंने पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करना था, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने पाकिस्तान की फौजी तनसीबात पर हमला करके, पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस पर हमला करके, रियासत पाकिस्तान पर हमला करके इकबाल के शाहीनों का नहीं बल्कि एक दहशतगर्दों के अमल को उन्होंने परवान चढ़ाया। और बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि ये जो सज़ाएं इन्हें हुई हैं, इन सज़ाओं में कुछ ताख़ीर भी हुई है। इन सज़ाओं का बरवक्त होना और उसके बाद जो फिर अफसोसनाक वाक़यात जो जिसमें डी चौक और उससे पहले के जो अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं, मैं समझता हूँ कि ये वाक़यात भी ना होते। और इन सज़ाओं की अगर हम बात करें तो इन सज़ाओं का तयन पहले हो चुका था और उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी हवाले से अदालतों को ये फैसला जारी करने के अहकामात किए थे कि वो इस 9 मई के सानिए में जो लोग मुलविस हैं उनकी सज़ाओं को वो अनाउंस कर दें और बता दिया जाए। और आज इन नौजवानों के जो चेहरे में देख रहा हूँ, इन्हें इस्तेमाल किया गया अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव के लिए, इन्हें इस्तेमाल किया गया मुल्की तनसीबात पर हमला करने के लिए। और वो दुश्मन का जो एजेंडा था, जो नापाक आज़ाइम थे, उसे तक़वियत बख्शी इन नौजवानों ने और ये अपने कैफ़रे किरदार तक जा पहुँचे। मैं तो आज के दिन उन माँओं को भी कहूँगा जो माएँ अपने बच्चों को तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करना चाहते हैं और सारी ज़िंदगी वो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और वो ये कहते हैं कि हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा और वो पाकिस्तान की तरक्की में अपना किरदार अदा करेगा, ख़ानदान की कफ़ालत करेगा। मतलब उस नौजवान पर नज़र नहीं रखी गई। और उन पेरेंट्स के लिए भी आज ये एक सबक आमोज़ सज़ाएँ हैं कि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा हो कि वो अपने नौजवानों पर, अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर नज़र रखें कि वो किस तरह की एक्टिविटीज़ का हिस्सा बने। कहीं वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ तो काम नहीं कर रहे, कहीं वो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ किसी मुहिम जोई का हिस्सा तो नहीं बने हुए। अब ये चीज़ भी देखनी है कि इस तमाम तर जो वाक़यात हुए थे, इसका मास्टरमाइंड जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुँचे, उसको फाइनेंस करने वाला कैफ़रे किरदार तक पहुँचे, उसको मोटिवेट करने वाला, उसको मोबिलाइज़ करने वाला, उसे वहाँ तक फौजी तनसीबात तक पहुँचाने वाला, वो भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचे। और ये जितने भी फैसले हुए हैं 2 साल से 10 साल, किसी को 6 साल और किसी को 10 साल की जो सज़ाएँ हुई हैं, ये सज़ाएँ ठोस शवाहिद और तफ्तीश की बुनियाद पर सुनाई गई हैं। ये कोई ऐसी सज़ाएँ नहीं हैं, इसमें काफ़ी ताख़ीर हुई है। मैं तो मनाज़िर यही कहूँगा, हम शुरू से यही कह रहे थे कि ऐसे अफ़राद को फ़ौरी तौर पर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए, जो इस तरह के गुनाह के मुर्तकिब हुए हैं या उन्होंने इस तरह के गुनाह का इर्तिकाब किया है। ये रियासत पाकिस्तान पर हमला था। इस 9 मई को एक छोटा-सा सानिया करार दिया जाता है और एक सियासी जमात बार-बार इसे एक प्लांटेड मंसूबा कहती है, जबकि अब ये तमाम शवाहिद सामने आ गए कि ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी की ईमा पर, किसी की मंशा पर, किसी की ख्वाहिश पर उन्होंने पाकिस्तान की तनसीबात पर हमला किया और ये हमारे शुहदा की बेतौकीरी की गई। ये कोई मामूली वाक़या नहीं है और मैं ये समझता हूँ कि ये वाक़या एक बहुत बड़ी मिसाल है और इसका एक तसलसल होना चाहिए कि जो शख्स भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ किसी जुर्म का इर्तिकाब करेगा, मुर्तकिब होगा, उसे सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। सही है सज्जाद बुखारी साहब, बहुत ही अच्छा आज फैसला दिया गया है। हम कह सकते हैं कि आज के फैसले के बाद आलमी तौर पर भी बहुत अच्छा और मुस्बत पैगाम पहुंचा है कि हम अपने जो शुहदा हैं उनकी कुर्बानियों को रायगाह नहीं जाने दे सकते, उनसे अकीदत रखते हैं और ख़ास तौर पर ये इंतशार की सियासत जो है इसको मुस्तरद करते हैं। देखिए, ये इंतशार, ये खलफशार, ये एक एजेंडा है। ये
इसे हम बहुत आसान समझ लेते हैं और कोई बड़ा सीधा बड़ी सिंपल सा मामला समझ लेते हैं। ये ऐसा नहीं है। हमें ये तलाश करना है, ताक़ुब करना है कि इन अफराद का जो अमल था, इसके पीछे कौन कौन से अवामिल कार फरमा थे, कौन कौन सी कुव्वतें इनके पीछे कार फरमा थी, इनको किसने डायरेक्शंस दी। और अब तो ये बातें बड़ी खुलकर सामने आई हैं और इन्होंने एतराफ़ भी किया है, जितने भी इसमें मुजरिम हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर एतराफ़ किया है कि किस तरीके से इनको भेजा गया, किस तरीके से व्हाट्सएप के जरिए इनको डायरेक्शंस दी गई, किस तरीके से इनको एक मीटिंग जो कि कुछ दिन कबल ही हुई थी इस स्थानीय से, उस मीटिंग में इनको बाकायदा डायरेक्शन दी गई कि आपने फलानी फलानी तंसीबात पर जाकर हमला करना है। तो मैं समझता हूँ इस बात को यहाँ रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उनका ताक़ुब बहुत ज्यादा जरूरी है जो इसके कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने ये जुर्म किया है। उनके लिए तो किसी किस्म की कोई माफी भी नहीं है। और आने वाले जो खास तौर पर जो दीगर जो नौजवान हैं, जो भटके हुए नौजवान हैं, जिन्होंने हमने तरक्की की राहों पर उनको लगाना था, जिन्होंने हमारी तरक्की की राहों को हमवार करना था, उन नौजवानों को बदकिस्मती से अपने सियासी एजेंडे के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, जलाओ घिराव के लिए, और आज भी उन्हीं नौजवानों को जलाओ घिराव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। सेंटीमेंट का इस्तेमाल पाकिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, पाकिस्तान की तामीर और तरक्की को और पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को कमजोर करने की साजिश है। और जज्बात को उभारना और ये जो पॉपुलिज्म है, ये उस मुल्क, खास तौर पर पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि लेस डेवलप कंट्रीज हैं, लेस डेवलप कंट्रीज किसी भी सेंटीमेंट का मुतामिल नहीं हो सकता। अमेरिका मुतामिल हो सकता है। आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप का इंतखाब हुआ और वो सेंटीमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स थी। हमारे पड़ोस में नरेंद्र मोदी जो है वो तीसरी मर्तबा इक़्तिदार में आया और वो भी सेंटीमेंट और जज्बात को उभार के और पॉपुलिस्ट और हिंदुत्व का नारा लगाया गया। लेकिन पाकिस्तान इसका मुतामिल इसलिए नहीं हो सकता कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आवाम है वो आदाद शुमार और पाकिस्तान की जो 24 करोड़ आवाम है वो सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस बेस्ड पॉलिटिक्स को ही समझती है और उसी की बुनियाद पर वोट डालती है। लेकिन अब जो एक हवा चली और सेंटीमेंट का इस्तेमाल किया गया, और ये सेंटीमेंट आप देखें सिर्फ झूठ का एक पलंदा है। आप सोशल मीडिया उठाकर देखें, जो बकवासियात अब तक सोशल मीडिया पर इन्हीं नौजवानों के जरिए करवाई जा रही है और फिर उनकी गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, तो मैं समझता हूं जहां उन नौजवानों के गिर्द घेरा तंग हो रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां अमल में आ रही हैं, वहीं पे इनके कर्ता धर्ता को सख्त और इबरतनाक जो है सजाओं का सामना करना पड़ेगा और उनको सजा मिलनी चाहिए, ताकि वो फिर पाकिस्तान के इन नौजवानों को अपने जाती मकासद के लिए, खुद परस्ती के लिए, शख्सियत परस्ती के लिए और आला मनसब के हुसूल के लिए इनको इस्तेमाल न कर सके। तो इनके लिए जो भी तरीकाकार एडॉप्ट किया गया वो ट्रांसपेरेंट तरीकाकार था, और फौजी अदालतों का जो कयाम है वो पाकिस्तान के लिए अशद उसकी ज़रूरत है, क्योंकि जो भी फौजी तनसीबात पर हमला करेगा या रियासत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो उसकी सजा का तयन भी फौजी अदालतों को ही करना चाहिए, क्योंकि ये सिविल मैटर नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान पर हमला है। तो मैं ये समझता हूं कि 9 मई के इन मुजरिमों को जो सजाएं मिली हैं, इनको तमाम तर कानूनी जो तरीका हुकूक थे वो भी इनको फराहम किए गए, इनको कौंसल फराहम किए गए, इनको मौका दिया गया। मैं फिर वही बात अपनी दोहराऊंगा कि अब भी इसमें ताखीर हुई है, काफी ताखीर हुई है, और ताखीर जो है वो हमें मजीद नुकसान पहुंचा सकती है। दीगर जो मुजरिमान हैं, अब जो डी चौक का सानिया था, जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसमें भी जो लोग इसमें मुलविस हैं उन्हें फिल फौर जो है वो सजा दी जाए, ताकि लोगों को इसके ये एक मिसाल बने और दोबारा हर कदम उठाने से पहले, और मैं आपके तवस्सुत से एक मरतबा फिर उन माओं को, उन पेरेंट्स को एक मरतबा मुखातिब करके ये कहना चाह रहा हूँ कि खुदारा अपने बच्चों पर, अपनी औलाद पर नजर रखें कि वो किस तरह की सरगर्मियों का हिस्सा बने हुए हैं। कहीं वो निसाब को छोड़ के, तालीम को छोड़कर कुछ किसी ऐसी सरगर्मी का हिस्सा तो नहीं बन रहे जो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, जो किसी सियासी जमात जो कि एक लिबादा ओढ़े हुए है, एक सियासी जमात का, एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी का, कहीं वो दहशत गर्दों और जो बैरूनी जो अनासिर हैं, जो पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर हैं और जो पाकिस्तान के खिलाफ इस डिजिटल और ख़ास तौर पर सोशल मीडिया और साइकोलॉजिकल वारफेयर का जो की कोशिश कर रहे हैं इम्पोज, कहीं ये उसको तकवीत तो नहीं बख्श रहे, कहीं ये उसके मेंबर तो नहीं बन चुके। तो मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसनाक है। एक तरफ तो इसका पहलू जिसका मैंने आपको बताया कि अफसोसनाक पहलू है, ये नौजवान जिन्होंने कल पाकिस्तान की तरक्की में कंट्रीब्यूट करना था, इन को है ये सजाएं मिली हैं और इन्हें ये सजाएं जरूर मिलनी चाहिए। देखिए, क्योंकि जो जुर्म करेगा और रियासत पाकिस्तान पर हमला करेगा उसको किसी किस्म की रियायत का कोई भी हक नहीं है।
बुखारी साहब, ये तो थी ऑन ग्राउंड डंडा बरदार फौज जिनके हवाले से ये अहम फैसला सामने आया है। आपने सोशल मीडिया का बार बार जिक्र किया, मैं